ask you a question. What is your definition of success? According to me, success is when you have your inner peace, safe, secure with yourself, and you're happy with that. Not when your peace is let down to any other people or around you or the situations जो तुम्हें ड्रेन कर देती हैं और तुम्हारे सारे के सारे मन की शांति को ख़त्म कर देती हैं. फिर चाहे तुमने लाइफ में कुछ भी अचीव कर लिया, you're not happy, you're not peaceful, that means you're not successful. Hello and welcome back to Echoes of Karina. This is me, Karina, and I'm a teacher by profession, and I'm back here with one more story which actually tells you what your peace is, which actually lets you know how to protect it. So let me start the story with a girl named Mira. So Mira was a very, very beautiful girl and not that experienced with the kind of world she was living into. The story says that मीरा एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लड़की थी, लेकिन वार्म हार्टेड थी थोड़ी सी और सबका ध्यान रखने वाली सी, स्वीट, a people's person you could also call her. So she was very, very simple. But let me tell you, मीरा सिर्फ एक कैरेक्टर है और हम सबके अंदर एक मीरा है. So I'm not talking about just Mira, I'm just talking about all of us here. So this story is for everyone out there. हम एक्चुअली ना हमारे पीस को हमारी आँखों के पीछे, हमारी स्माइल के पीछे, हमारे थकान के पीछे छुपा ले जाते हैं. वी ऑल गिव रीजंस टू आवरसेल्फ कि यार अब जब नहीं चल रहा है कुछ सही तो इस रीज़न की वजह से नहीं चल रहा होगा, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया होगा इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. बट अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आवर पीस. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि हम हमारे पीस के बारे में, हमारी मन की शांति के बारे में कर क्या रहे हैं. So let me begin the story with Mira. So Mira was a very soft-hearted person, very sensitive to everything. She was very, thoughtful of people, people's person, and everyone loved her. Not like that कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे. और उसका ये बिलीव था कि जब मैं दूसरों के लिए सब कुछ करूँगी ना तो शायद मैं भी अपने लाइफ में खुश रहूँगी. जब मैं दूसरों को खुश होता वो देखूँगी. एंड एट सम पॉइंट बातें बिल्कुल सही है कि ठीक है, हम दूसरों के लिए जब करते हैं हमें खुशी मिलती है उनको खुश देख के जो तुम्हारे अपने हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि यार जो तुम कर रहे हो सबके लिए, क्या तुम वो चीज़ें रिसीव भी कर रहे हो रिटर्न में? क्या वो चीज़ें रेसिप्रोकेट भी हो रही हैं? क्या वो थॉटफुलनेस जो हम उनके लिए शो कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए शो कर रहे हैं? मीरा वॉज अननोन ऑफ ऑल दीज थाट्स. सो लेट मी टेल यू अबाउट द फ्रेंड्स ग्रुप शी हैड. Her friends group was very, loud, chaotic, lively, fun-loving, and everything was good. And every time, हर conversation में हमेशा उनकी problems, सारी चीज़ें उनके friends के हिसाब से होगी. मीरा was just a fixer. मीरा was like कोई भी problem आ रही है, मीरा do this, मीरा do that, मीरा be on time, मीरा you have to be like this, you have to do this and all that. And she used to do it. जब भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, everyone would reach out to Mira and she used to solve it. She used to be easygoing with everything and every person around her. Also, let me tell you about her family. Her family was like, जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, Mira should be the one who's understanding. Mira should do everything kindly and should never say no. She should be an ideal person. But the question was, why? Why Mira has to be the only ideal person in the house? Why Mira has to be the only, soft-spoken and sensitive person around everyone's life? Mira अगर कर रही है सबके लिए सब कुछ, तो क्या वो डिजर्व नहीं करती कोई भी चीज़ होना उसके साथ? So one day, one of her friend asked कि what happened, Mira? You're behaving distinctly, and Mira was silent. She thought she is exhausted. She thought that she's tired of doing everything for everyone around her and not even receiving a single thing. मीरा को जब ज़रूरत रही तब कोई अवेलेबल नहीं था. बट ये चीज़ें धीरे धीरे उसे दिखना शुरू हो गई. Slowly she began to see that her peace is slipping away. फिर चाहे वो उसके फ्रेंड्स हों, चाहे वो उसकी फैमिली हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मीरा प्लीज़ ये कर लो, मीरा ये संभाल लो. मीरा कभी मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए. Because she thought अगर नहीं करूँगी तो लोग क्या कहेंगे. The only thing she had in her mind was लोग क्या कहेंगे. इसीलिए वो हमेशा हाँ में हाँ मिलाएगी सबके. जब से उसने ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू करी कि अब लोग क्या सोचेंगे से मैं डिस्टर्ब होने लग जाऊँ, उससे बेटर है मैं ना बोलना शुरू कर दूँ.
लेकिन तब तक भी इतना ईजी नहीं था उसके लिए उन सारी चीज़ों को मना करना जो वो नहीं करना चाह रही थी। उसका दिलो दिमाग उसे ये कहता था कि अब मना कर दे, अब नहीं करनी कोई भी चीज़। उसका दिल कह रहा है ना, उसका दिमाग कह रहा है ना, उसके अंदर की आवाज़ कह रही है नहीं मीरा, तुझे नहीं करना है सबके लिए सब कुछ। बट स्टिल शी वॉज डूइंग इट, शी वॉज सेइंग येस टू एवरीवन बिकॉज शी वॉज हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट। वो उसकी हैबिट बन चुकी थी कि उससे सबके लिए सब कुछ करना है। She has to be available every time. But one night there was something that changed. She was sitting alone in her room with dim lights and just staring towards the sky and all that. And her 10-year-old cousin came and asked, क्या हुआ मीरा दी, आप ऐसे अकेले बैठे हो, कोई प्रॉब्लम है? She smiled although it was the fake one because वो अपने भाई से कुछ नहीं कहना चाह रही थी और वो छोटा भी था। And she said, no, कोई मतलब नहीं है बता के। उसे ऐसा लगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा बता के। शी सेड आई एम फाइन, आई एम ओके। बट उसके भाई ने उसे जवाब दिया, दीदी जब आपका फ़ोन थोड़ा सा लो बैटरी पे चला जाता है तो हम उसे चार्ज करके अच्छा कर लेते हैं ना, सही कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं चीज़ों को। तो जब आप ऐसे लो फील कर रहे हो, आप ऐसे बैठे हो, आप खुद को क्यों नहीं चार्ज कर लेते? एंड देन शी थॉट, व्हाई नॉट? Why am I not doing the things जो कि मुझे चार्ज करती हैं? Why am I not doing the things जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में? क्यों मैं हर बार सिर्फ यही चीज़ें सोच रही हूँ, यही चीज़ें कर रही हूँ जो दूसरों के लिए ज़रूरी है, जो दूसरों को खुश कर रही है, उनको चार्ज कर रही है? But what about when I am low? What about when I need some charge? And that night was something जहाँ से उसने वो changes लाइफ में लाना शुरू किया। Changes such as saying no to people. जब भी कोई इसे कहता था कि नहीं यार कर लेना प्लीज़, हमें ये ज़रूरत है, शी यूज्ड टू से नहीं, अब मैं ये कर रही हूँ, आई एम बिजी, आई एम नॉट डूइंग दिस। और नॉट इन अ वेरी रूड और हार्श वे, शी नेवर सेड नो लाइक इन अ वेरी रूड और हार्श वे, शी जस्ट पोलाइटली डिनाइड थिंग्स बिकॉज शी न्यू उसका खुद का पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो उसके बाद उसको ये भी सुनने मिला दैट you have become selfish, you are just thinking about yourself, you have changed. But you know what? मीरा अगेन रियलाइज्ड कि जब उसका कोई अपना रहेगा ना तो वो उसके पीस को ज़रूर समझेगा। तो जब कोई ये सवाल कर रहा है ना, या फिर ये तुम्हारे पीछे ऐसे स्टेटमेंट्स ला रहा है दैट यू आर चेंज्ड, यू डूइंग दिस, यू हैव सेल्फिश, यू हैव बिकम सेल्फिश एंड ऑल दैट, दैट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट योर पीपल। जिसके लिए हम इतना कर रहे थे, जब वो हमारे ही पीस के बारे में नहीं सोचेगा तो वो किस टाइप का अपना इंसान हुआ? क्यों ही करना है कुछ भी? Similarly, she set some boundaries. हद बना के रखी उन चीज़ों की जो वो अब तक कर रही थी। Boundaries aren't walls, they're just doors with locks and you are the key to that. You have to decide कहाँ वो boundaries open होनी चाहिए, कहाँ वो दरवाजे खोलने हैं और किसको अंदर आने देना है और किसके लिए सब कुछ करना है। So that was something Meera started in, that was a change in Meera's life, and again she revisited the hobbies. पहले तक उसे चीज़ें जो करना पसंद थी, she never did that because of being busy with everyone else around her. But then she started doing it. She started whatever the hobbies were, reading, writing, or playing something, sports and everything, whatever she liked. She did that and she started doing it in a daily routine. तो अब वो उन चीज़ों की हैबिचुअल बन गई थी कि उसे अपने बारे में सोचना है और साथ ही साथ उसे अपने पॉजिटिव एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने पीस को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसने अपने आप को सबसे पहली चीज़ तो माफ़ किया कि ठीक है, आई फॉरगिव माई सेल्फ, जो भी मैंने किया अब वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, और अगर होगा तो वो सिर्फ उनके लिए होगा जो उसके खुद के अपने होंगे, नॉट फॉर एवरीवन। बाउंड्रीज ऐसी सेट करनी चाहिए जहाँ पे हम हर किसी को नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी पीस समझ रहा है, जिससे ये पता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग ऑन पर्पस, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। सो द रिजल्ट वॉज उसकी लाइफ बदलने लग गई, उसकी वाइब बदलने लग गई, उसकी एनर्जी बदलने लग गई, एंड एवरीथिंग अराउंड हर चेंज। Eventually people noticed, and you know what, Meera proudly replied to everyone, yes, I have changed because now I will always choose myself as the priority. My peace will be my priority and everyone else's expectations will be secondary, and I don't care about them. This was the line Meera said to those people who always questioned that you have become selfish, you have changed, and you're drained out and everything like that. So that was the answer she gave. And you know what?
Let people call selfish, let them misunderstand, and let them complain. Because people who value your peace will never ask you to lose it. The people who love you will never drain you. You know what? There's a beautiful quote. I'll read it for you. That it says that your peace is not a luxury, it is necessary. It is the oxygen for your soul and the foundation of your happiness. So from today, say no to your guilt, walk away without fear, rest without apology, and live without over explaining. And these were the lines जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना प्रेफर किया, बिकॉज हम हमेशा सब कुछ करने के लिए भाग रहे होते हैं और वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए. कभी ये नहीं सोच रहे होते हैं कि यार हमारी भी तो कुछ इम्पोर्टेंस है, हमारी भी कुछ सेल्फ वर्थ है, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको प्रोटेक्ट करना ना सिर्फ हमारा काम है. सो दिस स्टोरी वॉज नॉट अबाउट जस्ट मीरा और मीरा की लाइफ. मीरा वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. स्टोरी इज़ ऑफ एवरी वन ऑफ अस. स्टोरी इज़ लाइक कि हम हमेशा सोचने लग जाते हैं कि यार मना कर देंगे ना तो बुरे बन जाएंगे. किसी की लाइफ में ना तुम चाहो या तुम ना चाहो हमेशा बुरे बनोगे ही. यू कैन नेवर बी पीपल्स पर्सन इन एवरी वंस लाइफ. यू कैन नेवर बी द पॉजिटिव साइड. तो हमेशा किसी न किसी लाइफ में विलन रहोगे और तुम्हारी लाइफ में भी विलन्स हमेशा रहेंगे. और यू नो व्हाट, उसका मतलब ये भी नहीं होता है कि सामने वाला विलन है, बिकॉज वो सिर्फ तुम्हारी स्टोरी में विलन है. किसी और की स्टोरी में तो वो हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, कोई और तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहा है. दैट इज़ नन ऑफ your business. You don't have to think about that. You just have to think about what brings your soul happiness. What are the things that you feel happy when you're doing it? What are the people you live by? Are those people, securing your mental peace, thinking about you, letting you live your life happily, and also promoting you? There are people जो कि ऐसे भी होते हैं कि जब तुम कर रहे हो ना उनके लिए अच्छा, वो नहीं दिखेगा उन्हें, लेकिन उसके बाद बुराइयां करने के लिए वो पहले बैठे रहेंगे. सो इट्स ओके. Whatever people are saying, let them say. Whatever people are understanding, let them understand. But actually that is misunderstanding, जो कि तुम्हें नहीं क्लियर करनी है. You have to understand yourself. You have to understand your needs. You have to understand what is important for you, not for people, not for those situations जो कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा पीस ले जाने का काम कर रही है, तुम्हें ड्रेन आउट कर रही है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. दैट इज़ वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. What is important is you. What is important is your mental peace, your safety, your security, and how are you keeping that mental peace safe and secure around you. Your energy brings life. Your energy brings happiness to your life. Your energy is something जो कि चाह कर भी तुम जैसा उसे रखोगे वो सिर्फ तुम्हें रिटर्न में वही देगी. तो अब तक अगर तुम गिल्ट में जी रहे थे कि यार ये सारी चीज़ें गलत कर ली मैंने या हो गई मुझसे, अब अगर तुम गिल्ट में जियोगे तो तुम कुछ अच्छा उनमें से आउटपुट नहीं निकाल पाओगे. एंड इफ़ यू वांट दैट आउटपुट टू बी गुड एंड पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव टू लेट दोज थिंग्स गो. You just have to let people be. You have to let them do whatever they want to. You have to let them say whatever they want to. But at the end, you have to do what makes you happy. That is it. That is the only purpose of your life. And that is the only definition of happiness and success in your life. Achieve सब कुछ किया जा सकता है. But unless and until you're not happy and peaceful with that, that means you're not even successful. As I mentioned earlier, the definition of success for me is only peace and peace. Because if you are not peaceful with you're doing in your life, that means there is no point of doing it. And without any ambition, without any happiness, without any peace, everything is worthless according to me. Just worthless. Because रोबोट की तरह काम करना हम इंसानों का काम नहीं है. हम इंसानों का काम है अपने मन को शांत रखना ताकि हम सही डिसीजन ले सकें. जब हम सही डिसीजंस लेते हैं ना, हम अल्टीमेटली सही चीज़ कर रहे होते हैं. जब हम टाइम लेते हैं खुद के लिए कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले, दैट मीन्स वी आर गिविंग आर माइंड दैट स्टेबिलिटी. वो वाला फैक्टर हम उसे ला के देते हैं कि तुम अब स्टेबल बन चुके हो, यू कैन नाउ डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू, रादर दैन उस टाइम पे डिसाइड करना जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं. तो इट्स बेटर नेगेटिव इमोशंस को साइड कर लो. उन नेगेटिव इमोशंस को तुम्हें अफेक्ट मत करने दो. और वो नेगेटिव इमोशंस आएंगे भी तब जब तुम सिर्फ पीपल्स पर्सन बन के रहोगे. क्योंकि वही पीपल्स पर्सन जो वही लोग जिनके लिए तुम पीपल्स पर्सन बनते हो,
वही लोग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करने वाले हैं, वही लोग तुम्हें सिर्फ ड्रेन करने वाले हैं और कुछ भी नहीं होगा. So don't let people drain you, don't let people use you. Just be with yourself, not for anybody else. Be available for you, not for anybody else. So yeah, share this video to someone जो कि इसको सुनने की बहुत ज़रूरत रखता है और जो people's person बनने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहा है. Send this to people who actually need to be peaceful in their life and need to protect their own peace. Yeah, also let me know in comment section what are the things you do to protect your peace and how do you manage that. Do let me know in the comment section. And also if you want something just पे मैं video बनाऊँ and if you want me to speak on that topic, do let me know in the comment section. Till then, see you in the next. Bye bye.